Hey, good evening, everyone. I hope everyone is doing good. Can you all hear me? आवाज आ रही है मेरी सबको? चैट ऑप्शन पे थम्स अप कर सकते हो अगर आवाज आ रही है। ओके, परफेक्ट। ऑलराइट। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर हियर, सो बट आई विल जस्ट वेट 1 minute मोर फॉर एवरीवन एल्स टू ज्वाइन और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? Today we are going to start with Python, basics of Python from the very scratch. So it's going to be an interesting session. थोड़ी expectation setting करूंगा मैं, but let everyone come and then I will start. 1 more minute on. Okay, let's get started now. Though. All right, so let me. So today हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंटली प्रोग्रामिंग और पाइथन की. To start with, 1 second, 1 second, 1 second. Okay, yeah, perfect. I just need to. Hmm, feedback for I All right. Hmm. Let's see what is the attendance. Hmm. Okay, we can start. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल 1 और है सेशन 1 जो कि है पाइथन पे. पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इट्स वेरी पॉपुलर. काफी सारी चीजों के लिए यूज होती है आजकल. मैं बताऊंगा क्या क्या चीजों के लिए यूज होने लगी है आजकल. बट व्हाट इज प्रोग्रामिंग? इवन बिफोर कमिंग टू पाइथन, आई नो यू आर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड. यू नो, किसी किसी ने इंजीनियरिंग करी है, किसी ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से है. तो एक पहले डेफिनेशन बनाते हैं. व्हाट इज पाइथन? व्हाट इज प्रोग्रामिंग? Even before coming to Python, what is programming? You can share your views on the chat. I want to know from you. तुम्हारे हिसाब से प्रोग्रामिंग क्या है? Anyone, any guesses? Which is what comes to your mind when you hear programming? Okay, Vishal is saying communication between humans and computers. Process of writing instruction that computers can follow. Okay. It's a means of communication. Okay, perfect. It is a way to connect computers and the get information, writing some code. Good, good responses. Manipulation of data to have some desired outcomes. Okay, yeah, that is nice. वो भी करते हैं हम. Communication with machine. Mm-hmm. Correct. And machine is computer. So yeah, it is correct.
Making a simple language that will be easy to understand. Okay, I would take that as well. Nice. Okay, now let me rephrase exactly what is programming. So programming is communicating with computers using code. That is programming, and to do a step-by-step task. Telling a machine what to do with a step-by-step task, that is programming, right? So you don't have to worry about all these definitions. मैं ये सब notes में बना रहा हूँ, and before I end the class, I will share all these notes with you. तो आप लोगों को कुछ copy paste या कुछ notes बनाने की जरूरत नहीं है. Whatever I am sharing, whatever I am speaking, and I will be sharing with you. Right? So let me do one thing. Let me create this hand notes kind of a thing as we are progressing. So just give me 1 second. और मैं ना थोड़ा कैमरा बंद कर रहा हूँ बैंडविड्थ बचाने के लिए क्योंकि स्क्रीन शेयर होगी. Okay, so I guess everyone is able to see my screen in 1 minute from now. Just give me a second. Pulling this up. All right. So can you all see my screen? Yeah, I request everyone not to write anything on the screen. Okay. So programming is communicating with computers using code and telling a machine what to do step by step. That is what is programming. ठीक है. अब एक अगर brief timeline देखे, it's always good to consider this timeline view. ठीक है. So if you see that, then I would add a new thing over here, evolution of programming, right? तो कौन सा एरा था, कौन सी लैंग्वेज थी और क्या क्या फीचर्स थे. तो अगर हम बात करें 1950s की, ठीक है, 1950s में असेंबली लैंग्वेज फॉर्ट्रैन, ये तो बहुत पॉपुलर लैंग्वेज हुआ करती थी. और दीज वर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बेसिक से इंस्ट्रक्शन थे जो हम देते थे, और लैंग्वेजेस का नाम होता था असेंबली लैंग्वेज या फोर्ट्रैन. देन केम द एरा 1970s, जिसके अंदर एक लैंग्वेज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, सी. सी और पैस्कल. और यहाँ पे थोड़े स्ट्रक्चर बनाने शुरू करे प्रोग्रामिंग में, कुछ डेफिनेशन बनाने शुरू करी, कुछ सिंटेक्स आई, किस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है, किस तरीके से कोड लिखना है, थोड़ा स्ट्रक्चर शुरू हुआ 1970s के अंदर. फिर अगर हम बात करें 1980s की, तो दो लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट थी जो सामने आई, और वो थी सी प्लस प्लस और पर्ल. नाउ सी प्लस प्लस और पर्ल जो है, दीज वर द लैंग्वेजेस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज हुआ. अब ये क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं. ये कॉन्सेप्ट 1980s में आया. फिर बात है 1990s की, जहाँ पे जावा और पीएचपी जैसी लैंग्वेजेस
जो कि वेब एप्लीकेशंस बना सकती हैं, वेबसाइट्स बनाने लगी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब जरूरी नहीं है कि इनको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ही चलना है, जैसे कि मैक हुआ या फिर विंडोज हुआ या कुछ और हुआ। ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये लैंग्वेज चल सकती है। ठीक है, ये 1990s की बात है। और अगर हम बात करें 2000s में, तो अब पाइथन, जावास्क्रिप्ट, गो, रस्ट, ये अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो कि यूज होती हैं सिंप्लिसिटी के लिए, राइट, प्रोडक्टिविटी के लिए, डेटा साइंस के लिए, और अब बहुत सारे टास्क के लिए, राइट। So this is just an overview about how these programming, okay, are being used. So this is a brief evolution of, this is a brief timeline of programming languages. आज हम बात करने जा रहे हैं पाइथन की। ठीक है, वाई पाइथन, पाइथन क्यों, वाई, और पाइथन किसने क्रिएट करी। तो कुछ नोट्स उस पर मैं आपको देना चाहूंगा पाइथन के, जो कि मैं आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूँ अभी। गिव मी वन सेकेंड। यस, वाई पाइथन। तो एक एक साइंटिस्ट था, ड्यूडो ड्यूडो वैन रोसुम, 1991 में यहाँ पर पाइथन डेवलप हुई थी। और ये पाइथन स्नेक में एक टीवी शो आता था, उसके नाम पे उसने ये पाइथन लैंग्वेज का नाम रखा। नाउ पाइथन वाज बेसिकली अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्ट, छोटे छोटे काम फिक्स करने के लिए ना स्क्रिप्ट के तौर पे करी जाती थी। जैसे कि मुझे, लेट्स से, अपना डेटा उठा के डेटाबेस से मेमोरी में लाना है, तो मैं पाइथन यूज कर सकता हूँ। मुझे एक सिंपल सा काम टास्क करना है, उसको एक प्रोसीजर में चलाना है, अगर मैंने कोड लिखा है और मुझे उसे बार बार रन करना है कि हर हर 1 घंटे में कोड रन हो जाए, तो मैं पाइथन यूज कर सकता हूँ। राइट, इट इज वेरी सिंपल, रीडेबल है इंग्लिश लैंग्वेज की तरह, और छोटी सी लाइन ऑफ कोड में काम हो जाता है। इनिशियली एजेंडा ये था, बट ये ओपन सोर्स थी। ओपन सोर्स मतलब एनी वन कैन यूज, फ्री है, अवेलेबल है, कोई पैसे नहीं देने, कोई लाइसेंस नहीं देना, कोई भी यूज कर सकता है। एंड इस वजह से इसका कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज्यादा आने लगा। लोगों ने पाइथन के ऊपर बहुत सारी लाइब्रेरीज बना दी। लाइब्रेरीज क्या होती है मैं बताऊंगा अभी, आप खुद भी अपनी लाइब्रेरी बनाएंगे इनफैक्ट इस कोर्स में। लाइब्रेरीज बना दी, मॉड्यूल्स बना दिए, क्लासेस बना दी। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर होंगे। बेसिकली अपना खुद की एक पाइथन का ऐसी स्क्रिप्ट लिख दी, और ऐसी लाइब्रेरी जहां पर, लेट्स से, आप एक सीए हो, ठीक है, आप एक चार्टेड अकाउंटेंट हो, और आप ना अपने क्लाइंट का डेटा लेते हो, और क्लाइंट का डेटा लेके उस पर एनालिसिस करके बताते हो कि टैक्स रिटर्न क्या है। वो एक सीए ने क्या करा, एक बेसिक सा कोड लिख दिया इसका पाइथन में। तो उसमें इनपुट के तौर पे उसका आईटीआर नहीं, लेट्स से फॉर्म 26 एएस आ जाएगा, और वो ये बता देगा कि कितना टैक्स कंप्यूट हो रहा है। तो ये छोटी छोटी जो ऑटोमेशन हुए ना, ये हम कर सकते हैं। इस काम की आप अपनी खुद की लाइब्रेरी, अपनी खुद का कोड बना सकते हो, जो कि आप रीयूजेबल कर सकते हो। और ये ओपन सोर्स है, कोई भी यूज कर सकता है, अगर आप इसको ऑनलाइन पब्लिश कर दो तो। ऐसे करते करते बहुत सारी इसके अंदर लाइब्रेरीज बन गई, जिसने कि पाइथन को बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया, राइट। सो दैट इज द रीजन वी आर एक्चुअली लुकिंग इनटू पाइथन, क्योंकि डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स कह लो या डेटा इंजीनियरिंग कह लो, उसके लिए पाइथन काफी ज्यादा यूज होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पाइथन यूज कहाँ कहाँ होती है। क्या इस चीज का कुछ स्ट्रक्चर लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो इसके मैं नोट्स भी यहाँ पे लेके आ रहा हूँ कि डोमेन क्या है और यूज केस क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे टेक्स्ट को सेग्रीगेट करना पड़ेगा डोमेन और यूज केस में। ये सारे नोट्स मैं आपके संग शेयर करूंगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कॉपिंग ऑल ऑफ दिस। बिफोर वी एंड द क्लास ये सब आपके पास होगा, ठीक है। तो कहीं अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे। ओके जी, दिस इज क्लियर। नाउ अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट की, अगर मुझे एक वेबसाइट बनानी है, तो पाइथन के अंदर कुछ लाइब्रेरीज होती हैं
जिन्हें हम कहते हैं जैंगो और फ्लास्क। ठीक है। अब एक वर्ड बहुत ही कॉमनली शायद मैं बार बार यूज करूँ, लाइब्रेरी और मॉड्यूल। ठीक है। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, लाइब्रेरी बोलूं या मॉड्यूल बोलूं, अभी के लिए समझो एक ही बात है। ठीक है। तो ये मॉड्यूल क्या है? ये एक प्री रिटन कोड है पाइथन का, जहां पर मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि क्या क्या करना है। और अगर मैंने आपको बताया कि जैंगो एक मॉड्यूल है जो मैंने लिखा है, और जैंगो यूज होता है वेबसाइट बनाने के लिए, तो लेट्स से विशाल है यहाँ पे, विशाल भी यूज कर सकता है जैंगो, शेखर भी यूज कर सकता है जैंगो, वेदांत भी यूज कर सकता है जैंगो, सूरज भी यूज कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है जैंगो, क्योंकि ये ऑनलाइन अवेलेबल है। बस जैंगो इंस्टॉल करेगा और जैंगो यूज करना शुरू कर देगा। लाइब्रेरी और मॉड्यूल में एक हायरार्की होती है जो कि हम आगे समझेंगे, उसके लिए हमें कुछ और कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। तो अभी मैं लाइब्रेरी बोलूँ या मॉड्यूल बोलूँ, एक ही चीज समझना, दिमाग में समझना कि एक एक फाइल है पाइथन की जिसको जैंगो कहते हैं, जिसके अंदर कोई कोड लिखा हुआ है, या जिसे फ्लास्क कहते हैं, जिस भी मॉड्यूल की बात करूं मैं, और उसको कॉल करके हम जो वो पर्टिकुलर टास्क के लिए बना है वो टास्क कर सकते हैं। राइट। अभी के लिए इतना जानना जरूरी है कि जैंगो कुछ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के लिए यूज होता है ऑनलाइन वेब डेवलपमेंट में, और अगर सिंपल एप्लीकेशन बनानी हो तो फ्लास्क यूज होता है। डेटा साइंस के अंदर आप आगे पढ़ेंगे numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, scikit। numpy मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस के लिए यूज होगा। पांडास डेटा को लाने के लिए यूज होगा, अगर मेरा डेटा डेटाबेस में है तो मैं डेटाबेस से डेटा कैसे लेकर आऊँ। मैटप्लॉटलिब चार्ट्स ग्राफ्स बनाने के लिए यूज होगा। एंड scikit learn जो है वो होगा अपना मशीन लर्निंग के लिए यूज। एक सेकेंड, एक क्विक क्वेश्चन, कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन? मेरी स्क्रीन में कोई लैग है क्या? आई थिंक कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है। ऑल गुड, एवरीवन कैन सी क्लियरली विजिबल? ओके। प्लीज चेक इंटरनेट एट योर एंड। आई थिंक एट माई एंड एवरीवन इज एबल टू सी। तो या चेक योर कनेक्शंस वंस। ओके, परफेक्ट, गुड। इज माई वॉइस क्लियर टू एवरीवन? ओके, ऑल गुड। ऑल राइट, सो आगे बढ़ते हैं फिर। आई थिंक किसी किसी लोगों के एंड पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो आई वुड सजेस्ट एक बार अपना कनेक्शन चेक कर लें। ठीक है। ऑलराइट। सो लाइब्रेरी और मॉड्यूल एक बेसिकली एक पाइथन की फाइल है जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। वो क्या है, वो कैसे बनती है, हम आगे समझेंगे। ये अलग अलग डोमेन्स में, वेब डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, ऑटोमेशन के लिए, गेम डेवलपमेंट के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंस रिलेटेड चीजों के लिए, रोबोटिक्स के लिए, अलग अलग जो यूज केस, अलग अलग डोमेन्स जो हैं, अलग अलग सेक्टर्स जो हैं, अलग अलग वर्टिकल्स जो हैं, उसके अंदर ये यूज केस है पाइथन का। ठीक है। अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा है, स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, तो आपने सुना होगा रेस्पबेरी पाई और आर्डुइनो। रेस्पबेरी पाई और आर्डुइनो एक तरीके के मिनी कंप्यूटर्स होते हैं जिसको आप कोड, जिसके थ्रू आप कुछ ऑटोमेशन कर सकते हो, कुछ डिवाइसेस बना सकते हो। सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इसी में ज्यादा पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उसको भी कोड करने के लिए पाइथन यूज होती है, वेबसाइट्स बनाने के लिए, स्टॉक्स के एनालिसिस करने के लिए, गेमिंग के लिए, ऑटोमेट करने के लिए, डेटा साइंस के लिए, एआई के लिए, सबके लिए पाइथन यूज हो रही है। और यहाँ पर उनकी यूज केसेस, राइट, दैट इज व्हाई पाइथन इज इंपॉर्टेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम शुरू करते हैं थोड़ा कोड लिखने की तरफ। ये हमने बेसिक आइडिया ले लिया पाइथन, बट ये क्या है जहाँ पे मैं सब कुछ बना रहा हूँ? सुना है पहले नाम किसी ने कोलैब का? गूगल कोलैब। ओके, नाइस। इफ यू हैव ऑलरेडी heard the name Google Colab, it's good. बेसिकली अब मैं पाइथन का कोड कहाँ पे लिखूं? मेरे पे दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने लैपटॉप में पाइथन इंस्टॉल करूं, दैट इज वन ऑप्शन।
और लैपटॉप में पाइथन इंस्टॉल करने के बाद अ, एक एक सॉफ्टवेयर होता है एनाकोंडा। किसी ने एनाकोंडा सुना है? ओके, तो हमें गूगल सर्च करते हैं पाइथन एनाकोंडा। अगर आपको आपके लैपटॉप पे पाइथन चलाना है तो आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर ये एनाकोंडा इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, ये विंडोज के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए, सबके लिए है। और इस एनाकोंडा को इंस्टॉल करके आपको अलग अलग एडिटर्स मिलेंगे। ठीक है, जिसमें कि एक एडिटर है जुपिटर, जुपिटर नोटबुक, राइट। स्पाइडर भी अच्छा है, जुपिटर भी अच्छा है। आई वुड से जो जिसमें कंफर्टेबल है वो ज्यादा अच्छा है। एक टाइम था जब मुझे स्पाइडर काफी ज्यादा यूज करता था मैं अच्छे से, बट अब मुझे जुपिटर लैब में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। और आई वुड से जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब मैं जुपिटर लैब ज्यादा प्रेफर करता हूँ। और जब मैं खुद का कुछ काम कर रहा हूँ तब मुझे स्पाइडर ज्यादा समझ आता है। ठीक है, वीएस कोड जब मैं कंपनी के काम करती, कुछ प्रोडक्शन में मॉडल डालना है, तब मैं वीएस कोड यूज करूंगा। ठीक है, क्योंकि वीएस कोड से मैं अपना गिट कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं अपना कोड पुश कर सकता हूँ और काफी चीजें हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आई एम डूइंग आई विल चूज एन एडिटर अकॉर्डिंगली, राइट। बट पढ़ाने के लिए और इस पूरे कोर्स के लिए हम गूगल कोलैब यूज करेंगे। नाउ व्हाई गूगल कोलैब? गूगल कोलैब बेसिकली एक ऑनलाइन वर्जन ऑफ जुपिटर नोटबुक है। द गुड थिंग इज कि मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ IPY, आई पाइथन नोटबुक के तौर पे, जो कि आप जुपिटर नोटबुक में खोल सकते हैं। और डायरेक्टली आप वहां से इसको स्टार्ट यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये सब नहीं करना, आपको अपने लैपटॉप में कुछ नहीं डालना, तो आप सिंपल इस लिंक को खोल सकते हो और आप यहाँ पर कोड करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, आई विल शो यू। जब मैं आपको कोड शेयर करूंगा तो आई विल अज्यूम जैसे कि मेरे को एक कोड लिंक कहीं से मिला हो, तो मैं इसको कैसे यूज करूंगा, आई विल शो दैट टू यू। ठीक है, तो दिस इज गूगल कोलैब जहां पर हम कोड करेंगे। और ये जो अलग अलग सेल्स है ना, इन्हें हम सेल कह रहे हैं। ये अलग अलग सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। ठीक है, ये टेक्स्ट टाइप का सेल हो सकता है या कोड टाइप का हो सकता है। तो मैंने, आप देख रहे हो नेक्स्ट ऐड करने के लिए पूछ रहा है कि कोड है कि टेक्स्ट है, तो आई एम चूजिंग कोड। तो अब यहाँ पर मैं कोड लिख सकता हूँ कुछ भी, और अगर मैं टेक्स्ट चूज करूंगा तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ। तो ये सारी चीजें जो मैंने बनाई ये टेक्स्ट में बनाई। अब जब मैं कोड लिखना शुरू करूंगा वो मैं यहाँ से कोड लिखना शुरू करूंगा। ठीक है, ओके। सो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए या तो आप एनाकोंडा कर लें, या फिर आप यहाँ पर गूगल कोलैब का यूज करें। आई वुड प्रेफर गूगल कोलैब, इज इजियर, सो यू यूज गूगल कोलैब। ठीक है, कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो अगले सेशन में मेरे को बता देना। लाइब्रेरी मॉड्यूल अभी मैंने बताया नहीं है, तो पॉल मैं दोबारा बताऊंगा अभी इसके बारे में। लाइब्रेरी मॉड्यूल बेसिकली इट्स अ प्री रिटन पाइथन फाइल। इट इज अ प्री रिटन पाइथन फाइल, एक पाइथन की कोड जो कि कुछ पर्टिकुलर टास्क कर रहा है, परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क। बी के लिए ये समझते हैं, इस डेफिनेशन को वी विल चेंज। ओके, ऑलराइट। अब एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम से फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट याद है सबको, छोटे में पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट, राइट। क्या फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100, राइट। ये सबको याद होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा ये। अब मुझे क्या करना है, पाइथन में एक प्रोग्राम बनाना है जिससे मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूँ, राइट। ये बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ मैं, तो जिसको अभी भी कुछ पुराना समझ नहीं आया, यू कैन स्टार्ट डेफिनेटली, he or she can start definitely from here, राइट। अब मैंने क्या करा, मैंने P को इक्वल कर दिया। P क्या होता है? प्रिंसिपल। लेट्स से मैंने 1,000 रुपए लिए किसी से 5% के हिसाब से, तो रेट था 5% और टेन्योर कितना था? 2 साल के लिए लिया।
अब मेरा SI क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट विल बी जो भी मेरा P है इनटू इनटू इज मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया जैसे कि फॉर्मूला लिखता हूँ, और मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100। अब मुझे प्रिंट करना है ये सिंपल इंटरेस्ट, तो मैंने प्रिंट कर दिया सिंपल इंटरेस्ट SI जो भी इसमें आया। अब मुझे ये बताइए कि क्या प्रिंट होगा इन नंबर्स के संग, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? सोचो बताओ, कैलकुलेट करो जल्दी से। अगर मैं इस सेल को रन करूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? चेक करो एक बार अच्छे से। ध्यान से देखो एक बार, इसको मैं जूम कर रहा हूँ। आर यू श्योर यही आउटपुट आएगा या कुछ गलती भी हो सकती है? कोड को ध्यान से देखो, अब तुमने कॉन्सेप्ट को देख लिया, अब कोड को ध्यान से देखो। क्या कोड में मैंने कोई एरर किया है? एरर आएगा, राइट? प्लीज डोंट राइट ऑन द स्क्रीन एनीवन, राइट? एग्जैक्टली, यस, यू हैव आइडेंटिफाइड इट करेक्टली। एरर क्या आएगा कि पी पे एरर आ जाएगा। जैसे ही मैं रन करूंगा तो ये बोलेगा नेम पी इज नॉट डिफाइंड। ये कह रहा है भाई तुम स्मॉल पी यूज कर रहे हो और स्मॉल पी तो डिफाइंड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, राइट? अगर कैपिटल पी एक वेरिएबल का नाम है तो वो कैपिटल पी ही होना चाहिए यहाँ पे, राइट? सो या तो मैं इसे स्मॉल पी करूं तो इट विल मेक सेंस, एंड नाउ आई विल गेट द एरर, आई विल गेट द कोड, आई विल गेट द रिस्पॉन्स एज 100। ये रहा मेरा सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आई विल इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड टोकन्स। टोकन्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। ओके, क्या है ये? पहले होते हैं कीवर्ड्स, फिर होते हैं आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स और ऑपरेटर्स। चलो पहले ऑपरेटर्स, अभी सबके बारे में एग्जांपल लेके समझेंगे। और ये कॉमन है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकन होगा। किसी भी किसी भी प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि अनब्रेकेबल यूनिट है उसे हम कहते हैं टोकन, राइट? एंड ए क्लास होता है पंक्चुएटर्स। और सब कुछ लिखे गए हैं, इन सब के अंदर अंदर टोकन्स हैं। अभी दिखाते हैं कैसे, इसको पूरा ब्रेक करेंगे इनके फॉर्म्स में। पंक्चुएटर्स, कीवर्ड्स क्या है? जब लैंग्वेज हमने क्रिएट करी, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज समझ लो, हमने एक पर्टिकुलर वर्ड का मतलब रख दिया पहले ही कि इस वर्ड का मतलब ये है, इस वर्ड का मतलब ये है। ऐसे ही कीवर्ड्स क्या है? दीज आर रिजर्व्ड वर्ड्स विच कैरी अ स्पेशल मीनिंग। जैसे कि प्रिंट, प्रिंट का काम करना क्या है? प्रिंट का काम क्या है? प्रिंट करना कुछ भी स्क्रीन पे, राइट? तो दैट इज अ कीवर्ड। जैसे कि ये प्रिंट हो गया यहाँ पे, दिस इज अ कीवर्ड एग्जाम्पल प्रिंट। ऐसे ही ओके, प्रिंट, और ऐसे ही सम। सम भी अभी आपको दिखाऊंगा मैं, किसी चीज का सम करना, राइट? एडिंग अ फ्यू थिंग, दिस इज व्हाट अ रिजर्व्ड वर्ड विच कैरी अ स्पेशल मीनिंग। आइडेंटिफायर्स क्या है? और आई वुड से वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम। जैसे कि पी, पी क्या है? एक वेरिएबल। आर क्या है? वेरिएबल। मैं जो जो वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ वो मैं किस वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ? मैथमेटिक्स में भी होता है ना वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, राइट?
दैट इज वेरिएबल, P, R, T। SI भी क्या है, वेरिएबल है एक, ठीक है। दिस इज व्हाट यू विल डिसाइड, तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें क्या नाम रखना है किस वेरिएबल का, एंड यू हैव द कंप्लीट फ्रीडम। अगर मैं इसे PRT नहीं करता और ABC करता तो भी लॉजिकली मेरा कॉन्सेप्ट सही होता, ठीक है। बट इट इज ऑलवेज गुड टू टेक मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स। हमेशा वेरिएबल का नाम ऐसा रखो जो कि मीनिंगफुल हो, रिलेटेड हो तुम्हारी प्रॉब्लम से, ठीक है। तो दैट इज अ वेरिएबल हियर। लिटरल्स क्या है, लिटरल्स वैल्यूज असाइन टू वेरिएबल्स, जो कि इन वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करी गई है वो है लिटरल्स। जैसे कि 100, 5, 2, ये तो लिटरल हो गए। SI की वैल्यू क्या है, SI की वैल्यू कंप्यूटेड लिटरल है, जो कि कंप्यूट होकर आ रही है डिपेंडिंग अपॉन अदर वेरिएबल्स। बट जो डायरेक्ट वैल्यू असाइंड है वो क्या है, लिटरल्स है। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, ये सारे क्या है, ऑपरेटर्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। अभी ऑपरेटर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। बट दीज आर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो कि मैथमेटिकल फंक्शन करते हैं। इस पे अभी मैं बिल्कुल डिटेल में एक वो बनाऊंगा, टेक्स्ट कॉलम बनाऊंगा जिसमें हम इसको और डिटेल में देखेंगे। और पंक्चुएटर्स क्या है, पंक्चुएटर्स जैसे मैंने ब्रैकेट्स लगाया यहाँ पे, राइट, कॉमा कहीं मैं यूज करूँ, वो क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, सॉरी पंक्चुएटर हो गया। भी इसके अंदर मैंने कहीं पे आई थिंक सिर्फ ओनली ब्रैकेट इज अ पंक्चुएटर आई कैन से, राइट, उसके अलावा कोई मैंने यूज नहीं किया है। बट आगे यूज केसेस में देखेंगे, कभी हम फुल स्टॉप, कभी हम कॉमा लगाए, या फिर जैसे कि एक्चुअली PRT ऐसे करने के बजाय मैं एक तरीका और है पाइथन में जिसको स्टोर कर सकता था, वो ऐसे था, PRT इक्वल टू 100, सॉरी 1000, 5 एंड 2। इस लाइन का मतलब भी यही है कि P की वैल्यू 100 है, R की वैल्यू 5 है और T की वैल्यू 2 है। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। पाइथन में दोनों तरीके से कर सकते हो, इसको भी मैं करूंगा तो भी वैल्यू 100 की आएगी। इसमें मैंने एक लाइन में कर दिया, तो इसको एक लाइन में करने के लिए मैंने बीच में कॉमा यूज करा। दिस कॉमा इज अ पंक्चुएटर और अ सेपरेटर, राइट। हाँ, इसे हम मल्टीपल असाइनमेंट कहते हैं, ठीक है। और यही चीजें हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग में, पाइथन में। यही मैं आपको शॉर्टकट्स और चीजें बताऊंगा कि पाइथन में किस किस तरीके से तुम क्या क्या चीज यूज कर सकते हो। ओके, एक क्वेश्चन आया राहुल का कि ये हैश क्या है। हैश बेसिकली राहुल किसी भी लाइन को कमेंट करने के लिए होता है। अगर मैं कोड सेक्शन में कोई भी लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहा हूँ और मैं एज अ कमेंट लिखना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर मुझे एक कमेंट लिखना हो, दिस कोड कंप्यूट्स सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ राहुल, उसके आगे हैश लगा सकता हूँ, और वो एक नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन होगी। इस लाइन में जो भी लिखा होगा वो कोड की तरह रन नहीं होगा, कमेंट आउट कर दिया बेसिकली मैंने से। तो ये कमेंट लिखने का एक तरीका है राहुल पाइथन में। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन, राइट। तो ऑपरेटर्स आर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स फॉर कैरिंग आउट अ फंक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स टू कैरी आउट अ फंक्शन और अ टास्क, और punctuators are the separators used in programming। मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड पे जाएंगे अभी निशांत, अभी धीरे धीरे करके उस पर भी आऊंगा। अभी के लिए यही समझते हैं, ठीक है। तो क्विक रिकैप करते हैं, अभी तक हमने क्या देखा। हमने देखा प्रोग्रामिंग क्या है, एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग, कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्रोग्रामिंग आई, एंड पाइथन किसने डेवलप करी, कैसे डेवलप हुई, क्या क्या यूज केसेस है। और हमने एक बहुत ही सिंपल सा कोड लिखा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, और उसमें हमने ये समझा कि कीवर्ड्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, लिटरल्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, पंक्चुएटर्स क्या है। अब एक क्विक चेक करते हैं, ठीक है। मैं आपको, और जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसी का आंसर देना। मैं यहाँ पे एक पीस ऑफ कोड लिखने वाला हूँ, ठीक है, और जो कि बहुत सिंपल होगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
ओके, मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 200, सी इक्वल टू 300 और टोटल इक्वल टू सम। मैंने लिखा सम ABC और मैंने प्रिंट किया टोटल। ओके, अब एक मेरे को दिक्कत आ गई, तो मैंने कुछ ऐसे कर दिया, राइट। अब मुझे आपसे जानना है, मुझे सबसे पहले बताइए, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कीवर्ड्स एंड ऑल, इस पूरे कोड में जो मैंने सिलेक्ट किया है, इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से हैं आपके हिसाब से? प्रिंट और सम, राइट। प्रिंट एंड सम आर कीवर्ड्स, परफेक्ट। टोटल इज नॉट अ कीवर्ड, याद रखना, टोटल इज अ वेरिएबल नेम। I will come to that. So only sum and print are your keywords. Good, good. Okay. इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? A B C तो वेरिएबल्स हैं, टोटल क्या है? टोटल इज ऑल्सो अ वेरिएबल, बिकॉज टोटल में आप एक वैल्यू स्टोर कर रहे हो। वो वैल्यू एक फॉर्मूला बेस्ड वैल्यू है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। वो डिराइव्ड वैल्यू है rather than डायरेक्ट वैल्यू, बट यू आर स्टोरिंग अ वैल्यू टू इट। ओके, गुड। इसमें इक्वल टू क्या है, जो बार बार इक्वल टू यूज हुआ है, इक्वल टू क्या है? ऑपरेटर। इट इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटर, राइट। असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं हम इसको, जो वैल्यू स्टोर कराने के काम आएगा। परफेक्ट। लिटरल्स क्या है? लिटरल्स, व्हाट आर द लिटरल्स? 100, 2000, 3000, राइट, दीज आर ऑल लिटरल्स, करेक्ट। एंड पंक्चुएटर सेपरेटर, आई थिंक क्लियर होगा अभी तक। ओके, या कॉमा इधर हुआ, ठीक है। ऑल राइट, परफेक्ट, परफेक्ट, गुड। गुड टू सी दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस। ओके। नाउ we will do one quick thing. अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा ऑपरेटर्स की तरफ। uh, अगर हमें ऑपरेटर्स की तरफ बढ़े, तो मैं कुछ आपको टाइप ऑफ ऑपरेटर्स बताना चाहूंगा। मैंने कहा था ना, हम ऑपरेटर्स में डिटेल में बात करेंगे। ऑपरेटर्स में आई विल टेक ऑल द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाद में, अभी मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ जो हम पढ़ना चाह रहे हैं उस पर। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, आई विल टेक केयर ऑफ देम टुवर्ड्स द एंड, राइट। सो प्लीज होल्ड ऑन, क्योंकि हो सकता है मेरा नेक्स्ट टॉपिक आपका आंसर हो। ओके, तो सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। कौन कौन से होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स? एडिशन, ऐड करना, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस, राइट। उसके बाद डिवीजन, दिस इज ऑल, दीज आर ऑल कॉमन, ये हमने समझे देखा है। प्लस माइनस, मल्टीप्लाई कैसे डिनोट होता है यहाँ पे? एस्टेरिस्क से। डिवीजन कैसे होता है?
डिवीजन से, राइट। उसके बाद एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके अंदर दो डिवीजन वाले सिंबल लगते हैं। एक मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर देता है, और एक इसमें एक्सपोनेंशियल होता है जो कि पावर रेज करता है। अब प्लस माइनस तो आपको पता ही है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ठीक है। बात करते हैं फ्लोर डिवीजन। फर्स्ट फोर इजी हैं, राइट, आई थिंक सबको पता है। बट एक एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं। मैं अगर लिखूं 100 / 8, क्या रिस्पॉन्स आएगा? 12.5, ठीक है। 100 / 8 इज 12.5, बट अगर मैं लिखूं 100 / 8 तो क्या रिस्पॉन्स आएगा? अगर दो डिवीजन लगाया तो 12। फ्लोर डिवीजन, बेसिकली वो डिवाइड करेगा, डिवाइड करके जो भी रिजल्ट होगा उसकी फ्लोर वैल्यू, मैथमेटिक्स में होता है ना फ्लोर सील, राइट, उसके इंटीजर पार्ट, उसका इंटीजर पार्ट रिटर्न कर देगा। ओके, सो दैट इज फ्लोर डिवीजन। जब आपको डेसिमल्स के बाद कुछ चीज नहीं चाहिए, सिर्फ वो इंटीजर कंपोनेंट चाहिए, तो आप फ्लोर डिवीजन लगा सकते हो, राइट। गिव फ्लोर वैल्यू मींस लोअर वैल्यू, ये एक फंक्शन और होता है। अब सेम चीज देखते हैं मॉड्यूलस से। अगर मैंने कहा 100 मॉड्यूलस 8, तो क्या आएगा? रिमाइंडर क्या होगा? 100 को 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 20। वेदांत, नो, रिमाइंडर 20 कैसे बच जाएगा? 8 से बड़ा रिमाइंडर कैसे बचेगा? ना ना, करमजीत 12.5 तो डिवाइड करके आएगा। मॉड्यूलस लिखा है मैंने, रिमाइंडर। छोटे एग्जाम्पल से समझो, कोई भी चीज ऐसे समझ नहीं हो ना, उसको छोटे एग्जाम्पल कर दो। सिंपल करते हैं। 10 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिजल्ट तो आएगा 2.5। बट अगर 10 को डिवाइड करेंगे 4 से, और मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचेगा 2, राइट। 4 2 8, एंड देन 2 इज द रिमाइंडर। और अगर 11 को कर रहे होते तो 3 रिमाइंडर होता, राइट। तो जब मुझे रिमाइंडर चाहिए तब मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करूंगा। ओके। एक्सपोनेंशियल, पावर रेस करना। अगर मैंने कहा 2 raised to the power 3, उसको कैसे लिखूंगा मैं पाइथन में? 2 raised to the power 3 इज व्हाट? 8। तो मैं ऐसे लिखूंगा, क्यूब ऑफ 3, राइट। ओके, नाइस। अब मैंने कहा कि एक प्रोग्राम बता दो, एक क्वेश्चन लेता हूँ। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू टेक अ नंबर एज इनपुट फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट इट्स स्क्वायर एंड क्यूब। क्वेश्चन समझ आता है? पाइथन में एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें मैं यूजर से इनपुट लूं एक नंबर, और उस नंबर का मैं स्क्वायर प्रिंट करूं और क्यूब प्रिंट करूं। अब थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आनी चाहिए? तुम ये देखो, मुझे इनपुट क्या चाहिए इस प्रोग्राम को लिखने के लिए? एक नंबर चाहिए। तो इनपुट क्या होगा? एक नंबर होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाओ ऐसे दिमाग में। अब नंबर आने के बाद क्या करोगे? मुझे उसका स्क्वायर प्रिंट करना होगा और क्यूब प्रिंट करना होगा। तो बेसिकली नंबर को स्ट्रक्चरल थिंकिंग ऐसे लिखो कि हो सकता है मैं नम के अंदर एक नंबर ले लूं। अभी एज्यूम कर दो नंबर मेरा 5 है, इसका स्क्वायर क्या होगा? तो स्क्वायर नाम का वेरिएबल बना लो। स्क्वायर के नाम के वेरिएबल को कैसे कर दोगे? नम रेस टू द पावर 2। और क्यूब के अंदर क्या कर दोगे? नंबर रेस टू द पावर 3, राइट। तो यहाँ पर तुम नंबर पे खेलोगे, बेसिकली जो भी तुम्हारा इनपुट आएगा, तो तुम्हें इसे हार्ड कोड नहीं करना 5, तुम्हें इसे वेरिएबल लिखना है। बस लॉजिक ये लगाना होगा कि ये मैं हार्ड कोडेड देने की जगह
यूजर से ले लो, वो मैं बताऊंगा कैसे लेते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या बोला था, प्रिंट। प्रिंट करना है इनको, तो मैंने लिख दिया प्रिंट, मैंने लिख दिया स्क्वायर, प्रिंट कर दिया क्या स्क्वायर, और प्रिंट स्क्वायर के संग संग क्यूब कर दिया। एक तो तरीका ये है प्रिंट करने का, राइट। प्रिंटिंग के क्या क्या तरीके हैं उस पर भी हम जाएंगे। तो के लिए सिंपल रखते हैं, स्क्वायर प्रिंट करा, कॉमा लगा के क्यूब प्रिंट करा, तो दोनों जो भी वेरिएबल की वैल्यूज होंगी वो प्रिंट हो जाएगी, राइट। इज दिस क्लियर, दिस लॉजिक? तो इसमें हमें बस एक चेंज करना है। वो क्या चेंज करना है कि हमारे को ये नंबर एज अ इनपुट लेना है यूजर से। तो इनपुट ले लिया भाई। एक इनपुट नाम का फंक्शन होता है, जैसे कि प्रिंट नाम का फंक्शन होता है, प्रिंट करने के लिए सम नाम का फंक्शन होता है, कीवर्ड है, इनपुट एक कीवर्ड है। एक्चुअली इनपुट एक प्री रिटन फंक्शन है, ठीक है। इनपुट एक प्री रिटन फंक्शन है। अभी मैं कीवर्ड और फंक्शन में दोबारा आऊंगा, अभी के लिए मान लो इनपुट एक पाइथन में प्री बिल्ट फंक्शन है, ठीक है, जिसको कि हम यूज करके कुछ भी चीज यूजर से इनपुट कर सकते हैं, और हम इसमें अंदर मैसेज भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं एंटर अ नंबर, ठीक है। अब देखते हैं, अच्छा कितने लोगों को लगता है कोड चलेगा और दिक्कत नहीं देगा, और कितने लोगों को लगता है हु थिंक्स दैट इट विल बी, कि इसमें कुछ रॉन्ग है अभी भी। मैं इसके थ्रू आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी मैं यहाँ पर भी क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। ओके, नाइस। आई सी आई हैव लाइक गुड ऑडियंस, राइट। सो लेट्स सी। मैंने लिखा एंटर नंबर 5, एंटर कर देते हैं चलो, और मेरे को एरर आ गया। अब एरर आते ही सबसे पहले एरर आया, एरर को समझने की कोशिश करो कि क्या है। इस एरर में वो कह रहा है कि यहाँ इस लाइन पे प्रॉब्लम है, और ये कह रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप। आप कुछ एक्सपोनेंशियल रेस करना चाह रहे हो, या पावर भी कहते हो उसे, पावर बेसिकली रेस करना चाह रहे हो स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इनपुट फंक्शन है ना, ये जो भी चीजें इनपुट लेता है, ये स्ट्रिंग तरीके से लेता है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, इंटीजर क्या है, डेटा टाइप्स क्या है। तो हमारा नया कॉन्सेप्ट क्या है, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। बूल, स्ट्रिंग इज एसटीआर। ये चार तरीके के डेटा टाइप्स है पाइथन में। इंटीजर क्या है, इंटीजर जब भी कोई मेरा एक इंटीजर नंबर है, 4, 3, 2, 1, -1, राइट। एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर इज एन इंटीजर ओवर हियर, दैट्स इंटीजर। फ्लोट, जीरो भी इंटीजर है, यस। फ्लोट क्या है, जहां भी मेरी डेसिमल वैल्यूज हैं, 0, 4, 4, 4, 5, 4, 4 पॉइंट समथिंग, 1.2, राइट, 3.4, ये क्या है, मेरे फ्लोट है। बूलियन क्या है, बूलियन में सिर्फ दो वैल्यू आती है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स इज बूलियन, ट्रू इज 1, फॉल्स इज 0। बट हम इसे ट्रू या फॉल्स ऐसे लिखते हैं, ट्रू में भी टी कैपिटल, फॉल्स में भी एफ कैपिटल। और स्ट्रिंग क्या है, समथिंग दैट कंटेन्स एनीथिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिखूँ यश, ठीक है। मैं विश्वजीत का नाम लिखा हूँ, विश्वजीत। विश्वजीत was asking who is replied to me, everyone is on mute. Vishwajit, I'm constantly seeing the chat, so chat में people are responding, that's the way we have kept it, क्योंकि unmute करना is like there can be a lot of noise, so that is why, right। और फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ पाइथन, तो पाइथन कम्स इन स्ट्रिंग। नाउ स्ट्रिंग को लिखने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट, वो हम आगे समझेंगे क्या क्या तरीके हैं, ट्रिपल कोट्स, बट वो आगे का टॉपिक है।
Okay, right. So these are my data types: integer, float, string, booलियन। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि इनपुट फंक्शन ने जो इनपुट लिया वो सिर्फ स्ट्रिंग फॉर्म में लिया, तो मुझे इसे एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में। तो मुझे छोटी सी चीज करनी है, जब भी ये इनपुट आएगा मुझे इस पूरी चीज को कन्वर्ट किसमें कर देना है? इंटीजर में। तो मैं बस क्या करूंगा, इसको ब्रैकेट में डालूंगा और इसके आगे इंटीजर लिख दूंगा, दैट्स ऑल। तो अगर ये स्ट्रिंग टाइप का आएगा तो स्ट्रिंग कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा? इंटीजर, राइट। अब देखते हैं, एंटर नंबर 5, और क्या आ गया? उसका स्क्वायर और उसका क्यूब, राइट। So this way we have used an arithmetic operator, and the arithmetic operator has been used in conjunction with a program जिसने write a program in Python to take a number, ये नंबर ले रहा है और यहाँ पे उसका स्क्वायर कंप्यूट कर रहा है, क्यूब प्रिंट कंप्यूट कर रहा है और उसे प्रिंट कर रहा है, राइट। इज दिस पार्ट क्लियर? और इसके बाद डेटा टाइप्स देखे, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। और अब इसके बेसिस पे मैं आगे आपको नए नए ऑपरेटर्स बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन हो, एनी डाउट फ्रॉम एनीवन? कैन वी डू फ्लोट? यस, वी कैन डू फ्लोट। अगर मैं इसे फ्लोट भी करता, गुड क्वेश्चन कंजीत, अगर मैं फ्लोट करूंगा तो क्या चेंज होगा देखते हैं। अगर मैं फ्लोट करूंगा तो 5 मैंने इनपुट लूंगा, बट क्या आपने देखा बाय डिफॉल्ट आउटपुट में क्या ऐड होके आ गया? 0.0, राइट। 0.0 क्यों? क्योंकि जब नंबर ही फ्लोट था तो इसका स्क्वायर भी जिस नंबर में रिप्रेजेंट होगा दैट विल ऑल्सो हैव अ डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 0 लगा होगा, तो उसका भी डेटा टाइप चेंज हो गया इस नंबर के डेटा टाइप चेंज होने से, राइट। परफेक्ट, नाइस। ओके, अब इसके बाद हम एक और चीज पे आते हैं। अभी तक ये हमने पढ़े बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, अगर मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दूंगा असाइनमेंट के तौर पे आज, जो कि कल आपको करके लाना होगा, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू दैट, राइट। आई एम कॉन्फिडेंट नाउ यू विल बी एबल टू डू दैट। अब हम ऑपरेटर्स में एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। और दिस इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स, राइट। कंपैरिजन करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कोई भी दो चीजों को कंपेयर करना हो, ये तो बढ़िया आदत है कंपेयर करना। तो ऑपरेटर चाहिए इसके लिए। सबसे पहले इक्वल टू, कि दो चीजें बराबर हैं कि नहीं है। इक्वल, इक्वल्स टू, राइट। आई विल एक्चुअली राइट द नेम ऑफ द ऑपरेटर्स, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। सो इक्वल टू कहते हैं, एक ये हो गया। नॉट इक्वल टू, ये हो गया। ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू, और लेसर देन या इक्वल टू, ठीक है। ये हो गए सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब एग्जाम्पल देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। मेरे को आपको रिजल्ट्स बता दें, आप लोग मेरे को रिजल्ट्स बताएंगे कि क्या होगा। अगर मैं लिखूं 5 इक्वल टू 5, ये क्या रिस्पॉन्स देगा मेरे को आपके हिसाब से? ट्रू। ओके, माइंड यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ट्रू देगा ना, ये बूलियन टाइप है। ये बूलियन टाइप का रिस्पॉन्स है। कंपैरिजन ऑपरेटर का रिस्पॉन्स हमेशा बूलियन होगा, दैट मीन्स ट्रू या फॉल्स, राइट। तो अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, मैं लिखूं a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू a इक्वल टू b, प्रिंट c। तो c क्या आएगा? दिस इज द ट्रिक क्वेश्चन। सो ये लाइन्स आपको समझने की जरूरत है। c की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 5 या ट्रू? लेट्स सी।
सी विल बी ट्रू। रीजन बीइंग, क्योंकि जो भी इक्वल टू के इस साइड है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे, पहले वो कंप्यूट होगा। तो ए इक्वल टू बी इज व्हाट, ट्रू, एंड दिस ट्रू वैल्यू इज गेटिंग असाइन्ड टू सी, which is true over here, right? Got it? Okay. Similarly, not equal to, अगर मैंने इस सेम कोड को ले लिया और मैंने लिख दिया a इक्वल टू 10 एंड c इज नॉट इक्वल टू b, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज मैं कह रहा हूं कि c a के बराबर नहीं है, विच इज करेक्ट, तो c बिकम्स ट्रू। बट अगर मैं यहाँ बोलता c इक्वल्स टू b, तो ये हो जाता फॉल्स, कि जो मैं कह रहा हूँ वो गलत था, वो फॉल्स होता, तो यहाँ फॉल्स हो जाए। सिमिलर वे में जब भी मुझे दो नंबर कंपेयर करने हो और एक बूलियन वैल्यू चाहिए हो कि कुछ किसी से बड़ा है, छोटा है, नहीं है, तब मैं बाकी ऑपरेटर्स का यूज कर सकता हूँ। लेट्स से ग्रेटर देन ए सिंपल, 10 इज ग्रेटर देन 3, ट्रू, ये सही है। 3 इज लेस देन 1, फॉल्स, ये फॉल्स है, क्योंकि 3 1 से बड़ा है, एंड मैं कह रहा हूँ 3 इज लेस देन 1, फॉल्स। बट अगर मैं बोलूं 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये ट्रू होगा। ये दो चीजें चेक करता है, क्या ये बड़ा है या बराबर है, राइट? इज इट ग्रेटर देन और इज इट इक्वल टू? तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ट्रू। 5 इज लेस देन इक्वल टू 9, ट्रू। 5 या तो 9 से बड़ा हो, या तो बराबर हो, या छोटा हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन। छोटा है तो ये कंडीशन ट्रू है, इस वजह से ट्रू होगा। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन सही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू के संग, ग्रेटर देन और लेसर देन के संग, ग्रेट इक्वल टू के, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेसर देन इक्वल टू। तो ये है अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब एक और आते हैं जिसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। और असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या हो जाता है, ये जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है ना, योगेश का एक क्वेश्चन है, इक्वल टू क्या है? इक्वल टू इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। दो वैल्यूज को जब चेक करना हो कि वो इक्वल है कि नहीं, जैसे कि ये योगेश 5 इक्वल टू 5, अगर मुझे कंपेयर करना हो कि 5 5 के बराबर है कि नहीं, और इन एनी प्रोग्राम अगर मुझे चेक करना हो कि कोई एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है कि नहीं, तब मैं इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करूंगा। जब हम आगे प्रोग्रामिंग लॉजिक बनाएंगे, उन लॉजिक्स को बनाने के लिए ये चीजें हमारे काम आएंगी, राइट? आई होप योगेश दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ओके, गोइंग बैक, हम बात कर रहे थे ऑपरेटर्स की, और ऑपरेटर्स में मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बताए थे, कंपैरिजन ऑपरेटर बताए थे। अब एक तरीके का ऑपरेटर और है जिसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ना, जितने भी आपके, एक तो है असाइनमेंट में जैसे हम कहते हैं इक्वल टू, जो कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अ, 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 एक तो इक्वल टू असाइनमेंट है, एक एडिशन के संग भी मैं असाइनमेंट लगा सकता हूँ, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल इक्वल टू। अब जो भी अरिथमेटिक था ना, सिंपल है, हर अरिथमेटिक के आगे मैंने एक इक्वल टू लगा दिया। अब ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये कैसे यूज होता है देखते हैं, समझते हैं इससे। ठीक है, मैंने लिखा, ये इंटरेस्टिंग है, ए इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं ए इक्वल टू 5 मतलब असाइनमेंट, ए की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 5, सिंपल, वेरी क्लियर। बट मैंने लिखा ए प्लस इक्वल टू 10। अब मैं लिख रहा हूं प्रिंट ए, क्या प्रिंट होगा? ए प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है?
ए प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैं लिख रहा हूं जो भी ए है उसके अंदर 10 ऐड किया जाए और उसको वापस से किस में स्टोर कर दिया जाए? ए में। बट इसको शॉर्ट फॉर्म के तौर पे हम ऐसे लिख रहे हैं, राइट? उसको शॉर्ट फॉर्म के तौर पे हम ऐसे लिख रहे हैं, बस ये चेंज है। तो ए अगर 5 था और मैंने करा ए प्लस इक्वल टू 10 और ए इक्वल टू ए प्लस 10, तो मेरा ए कितना हो गया अब? 15, राइट? तो ए की वैल्यू हो गई 15। कंटिन्यू करते हैं इसको। अब मैं लिखता हूँ इक्वल्स ए माइनस इक्वल्स टू 2। अब ए कितना हो गया? थिंक अबाउट इट। ए की वैल्यू 5 कंसिडर होगी कि ए की वैल्यू 15 कंसिडर होगी बिफोर यू स्टार्ट दिस? ए माइनस इक्वल टू 3। ओके, दिस विल बी 13। देखो, अगर आप समझ रहे हो ए की वैल्यू 5 कंसिडर होगी तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू ए की क्या हो चुकी थी? 15 हो चुकी थी ना। तो अब जब भी नेक्स्ट ए का रेफरेंस होगा तब ए 15 की तरह यूज होगा ना। ए माइनस इक्वल टू 15 मतलब ए इक्वल टू ए माइनस 15, राइट? तो ए हो गया 13, राइट? अब एक और चीज करते हैं। ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 4, प्रिंट ए। 52। ठीक है, दोबारा समझते हैं एक बार स्टार्टिंग से। अर्पिता, आपने क्वेश्चन पूछा, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस अगेन, है ना? अभय ऑल्सो, आई एम एक्सप्लेनिंग। ए स्टार्टिंग में 5 था, ठीक है? अब मेरे पास एक नया ऑपरेटर है ए इक्वल टू 5। इक्वल टू क्या है? एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसने वैल्यू असाइन कर दी 5 की ए में। जब मैं लिखता हूँ ए प्लस इक्वल टू 10, राइट, तब मैं एक्चुअली में क्या कह रहा हूँ? ए के अंदर 10 ऐड करो और वापस से वो वैल्यू ए में स्टोर कर दो, ठीक है? तो ये शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट फॉर्म है इस चीज का। तो ए प्लस इक्वल टू 10 क्या हो गया? 5 वैल्यू के अंदर 10 ऐड हुआ, 15 बना, और वापस से 15 चला गया ए में, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 15। यहाँ तक क्लियर है? अब है अर्पिता, यू स्पेसिफिकली आस्क दिस क्वेश्चन नाउ। अब मैं लिख रहा हूँ ए माइनस इक्वल टू 2 मतलब ए इक्वल टू ए माइनस 2, राइट? अब अगर मैं ये लिखता हूँ ए माइनस इक्वल टू 2, तो क्या हो गया? ए के अंदर जो भी वैल्यू थी लेटेस्ट 15 थी, 15 से 2 माइनस करी, 2 माइनस करी 13 हो गई, वापस से ए में स्टोर हो गई, तो ए क्या हो गया? 13 हो गया। तो दैट इज व्हाई आई गॉट ए इक्वल टू 13। अब मैंने लिखा ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 4, राइट? ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 4, और मैंने लिखा प्रिंट ए। तो बेसिकली ए के अंदर 4 का मल्टीप्लीकेशन, 13 टाइम्स 4 इज 52, so वैल्यू ऑफ ए इज 52। सिमिलरली मैं बाकी सारे ऑपरेटर्स के संग भी यही कर सकता हूँ। फ्लोर डिवीजन में तो पहले बेसिकली आप ये समझोगे अपडेट करने के लिए है। जो भी कैलकुलेशन अपडेट करके उसी वेरिएबल में स्टोर करनी है तब मैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करूँ, राइट? अगर मुझे ए पे ही कुछ फर्दर काम करना है और ए में ही ऐड करना है तो मैं तो इसको ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है? ऑल राइट, शॉर्ट हैंड नोटेशन, यस। अब अ, एक एग्जाम्पल आपको वो ध्यान है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने कैसे लिखा था? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, राइट? इससे जल्दी समझ आएगा। पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ये ऐसा ही था, ठीक है? अमाउंट क्या होता है? फाइनल अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई, राइट?
ये आपका अमाउंट होता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस ऐसा है। तो ऐसे ना आप अमाउंट को और फॉर्मूलाज को ब्रेक कर सकते हो। ठीक है। तो इसके अंदर ही अगर आपको प्रिंसिपल प्लस, अगर मैं लिखूं प्रिंसिपल प्लस इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये भी तो अमाउंट होगा। होगा कि नहीं होगा? तो देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें ये क्या है, इंटरेस्ट है। ये कंपोनेंट इंटरेस्ट है। पहले मैं इंटरेस्ट कंप्यूट कर रहा हूँ, मैं इसको अलग से वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहा हूँ। थोड़ी कंजूसी दिखा ली भाई, वेरिएबल का स्पेस बचा लिया। ठीक है। इस चीज को वेरिएबल में स्टोर नहीं करा, एसआई में इसको डायरेक्टली यहाँ लिख दिया और इसके अंदर प्रिंसिपल ऐड कर दिया। इन अ वे ये चीज एसआई थी और पी प्लस एसआई अमाउंट था, बट अगर मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं, दिस बिकम्स माई अमाउंट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है ये। ठीक है। बेसिकली आप ये समझो परमजीत, ये दो अलग अलग चीजें हैं जो कि एक फॉर्मूले में कंबाइन कर दी गई हैं। सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 करके लिखा जाता है। ठीक है। अमाउंट को क्या लिखा जाता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। राइट, ये पार्ट क्लियर है सबको? आई थिंक ये तो क्लियर होगा, दो लाइंस। सिंपल इंटरेस्ट अलग से कर रहे हैं, अमाउंट अलग से कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपको रोक दूं और कहूं कि आप नए वेरिएबल्स ऐड नहीं कर सकते, आप ऐसा ही नहीं बना सकते, आप अमाउंट नहीं बना सकते, और मुझे एक सिंगल लाइन में अमाउंट कंप्यूट करके बताओ सिर्फ प्रिंसिपल रेट और टाइम को यूज करके, बट मैंने कंडीशन लगा दी कि आप नए वेरिएबल्स क्रिएट नहीं कर सकते, तो आप कैसे करोगे? तो आप सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, तो ये आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट आ गया। ठीक है। जो कि आपने यहाँ किया था वो आपने यहाँ पे किया, एंड इसी के अंदर आपने प्रिंसिपल ऐड कर दिया। तो दिस बिकम्स योर प्रिंसिपल प्लस योर ऐसा है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वन इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एंड, और नॉट, दीज आर योर लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर मुझे कंडीशंस जोड़नी हो तो मैं बोलूंगा एंड और नॉट। ठीक है। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं इसका। अब ये आप लोग मुझे हेल्प करेंगे, देखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। सो ए इक्वल टू 3। ठीक है। अब मैं बोलूँ आपसे प्रिंट ए ग्रेटर देन 3 एंड ए लेस देन 10, क्या प्रिंट होगा? विशुजीत, वुड यू लाइक टू टेल क्या प्रिंट होगा? ट्रू या फॉल्स? विशाल, परमजीत, दीपक? break it down into two things. Let's see the response first. False. Correct. Yes, nice. Most of you were correct. तो a इक्वल टू 3, अगर मैं कर दूं a इक्वल टू 5, अब क्या प्रिंट होगा? ट्रू। तो बेसिकली दो कंडीशंस को जब मुझे जोड़ना हो तब मैं एंड का बीच में यूज कर सकता हूँ। एंड मीन्स दोनों करेक्ट होनी चाहिए, राइट? और मीन्स दोनों में से एक करेक्ट होनी चाहिए। एंड नॉट मीन्स इट्स अ नॉट, जो भी मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है उसका ऑपोजिट रिजल्ट ले रहा है। तो दैट इज एंड और नॉट। एक और एग्जाम्पल, अगर मैं सेम तरीके से यहाँ पे ले लूँ और मैं रख दूँ ए इक्वल टू 500, ए इज ग्रेटर देन 300 एंड और ए इज लेस देन 100, अब क्या प्रिंट होगा? ट्रू, क्योंकि ईदर ऑफ द कंडीशन शुड बी ट्रू, राइट?
तो ये एंड और हो गई। नॉट के लिए देखते हैं, ए इज इक्वल टू 500, प्रिंट ए इज नॉट इक्वल टू, ए इज नॉट इक्वल टू 500, सॉरी, ए इज इक्वल टू 500। ये तो ट्रू हो गया, ठीक है। बट कभी कभी जब हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तब हम ये देखेंगे, किसी किसी केसेस में हमारे को जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, उसका उल्टा रिस्पॉन्स चाहिए होता है। तो अगर मुझे इसका उल्टा रिस्पॉन्स चाहिए तो मैं इसके आगे नॉट लगा सकता हूँ। बेसिकली जो भी ट्रू होगा उसे फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा उसे ट्रू कर देगा, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होगा? ये आगे जब हम प्रोग्रामिंग के कुछ लॉजिक्स बनाएंगे तब मैं आपको स्पेसिफिक लोकेशंस बताऊंगा कि यहाँ पर मुझे पॉजिटिव को नेगेटिव करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। तब हम उसे नॉट से कर रहे होंगे, तब आप रिलेट कर पाओगे। अभी सिर्फ याद रखो कि नॉट नाम का एक ऑपरेटर होता है जो कि रिस्पॉन्स को उल्टा कर देता है, ठीक है। अब एक ऑपरेटर्स और आते हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पे, जिन्हें कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो होते हैं इज नॉट। थोड़ी इंग्लिश आ गई यहाँ पे ऑपरेटर्स के नाम में भी, इज और इज नॉट, राइट। नाउ ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स किस काम आते हैं? अगर मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, मैं लिस्ट भी बना सकता हूँ। लिस्ट क्या होती है? हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ नंबर्स। मेरे को 3 नंबर लिखने हैं, बट एक ही लिस्ट में लिखने हैं। और वाई है, वाई को मैंने लिख दिया, सॉरी, वाई इज इक्वल टू एक्स कर दिया मैंने, वाई इज इक्वल टू एक्स कर दिया। और जेड को मैंने इक्वल कर दिया वापस से 1 2 और 3 के। तो अगर मैं लिखूं, अगर मैं प्रिंट करूं, प्रिंट एक्स इज वाई, तो क्या प्रिंट होगा मेरा? ट्रू, राइट, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू वाई, राइट। एंड अगर मैं लिखूं प्रिंट एक्स इज नॉट वाई, इट इज फॉल्स, बिकॉज दिस इज अ फ्रॉम वाई। तो इज और इज नॉट हम अगेन आगे यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लॉजिक्स बनाने के लिए। सिमिलरली इज और इज नॉट की तरह हमारे आते हैं इन एंड नॉट इन, जिसे हम कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स, राइट, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो इसको एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पे ऐड करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स, एंड ये हो जाएंगे इन एंड नॉट इन। ये भी सिंपल है समझना। अगर मेरे पास एक्स है 1 2 3, और मैं लिखूं प्रिंट 1 इन एक्स, क्या 1 है एक्स में? यस, इट इज देयर, so it is true. Print 2 not in X. So it is false because it is there, but we were checking for if it's not in there. तो क्या हो गया? वो false हो गया। ओके, तो दिस इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट द डिफरेंट ऑपरेटर्स। हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने देखा देर इज वन मोर टाइप विच इज बिटवाइज। बिटवाइज का थोड़ा एडवांस्ड यूज केस है जो कि मैं आगे जाके बताऊंगा। सर सिर्फ एक तरीके का ऑपरेटर मैं भी छोड़ रहा हूँ जो कि मैं कल की क्लास में बताऊंगा। तो we have seen the different types of operators, we have seen data types, and apart from data types, I want to tell you one more thing, and that is naming conventions. Naming convention
for variable naming. Rules I can say, right? क्या क्या rules हमें follow करना है variable names के लिए, that is important. तो पहला rule क्या है? Rules for naming variables. Right. So let's see rules for naming variables now. One of the first rules is they are case sensitive. Actually, I have a few notes. I can bring the notes. Hmm. Let's use this. तो पहला रूल है, मैं इसको एडिट कर देता हूँ, that they must start with a underscore, right? That is important. A letter or underscore. जैसे कि मैंने लिख दिया name या score. ठीक है? The thing is that it cannot start with a number. Variable names cannot start with a number. आप एक variable नहीं बना सकते underscore one underscore something something. वेरिएबल नेम्स को कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना, या तो लेटर से स्टार्ट करो या अंडरस्कोर से स्टार्ट करो. ये पहला रूल. दूसरा रूल, नंबर से स्टार्ट मत करो. तीसरा रूल, आपकी वेरिएबल नेम के अंदर लेटर हो सकते हैं, नंबर हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है. ठीक है. फोर्थ रूल, नो स्पेशल सिंबल्स आर अलाउड. ठीक है. केस सेंसिटिव होते हैं, ये फिफ्थ रूल है. ये हमने अभी देखा था प्रिंसिपल, रेट और टाइम वाले एग्जाम्पल में. ओके. सो एज विल नॉट बी इक्वल टू एज, और वेरिएबल नेम जो है वो पाइथन कीवर्ड नहीं हो सकता. ओके. सो ये कुछ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए वेरिएबल्स बनाने के लिए. ठीक है. तो क्या नहीं चलेगा, वन अंडरस्कोर ए इक्वल टू 10, ये एरर दे देगा, ये अलाउड नहीं है. ठीक है. अगर आप तीन वेरिएबल बनाना चाह रहे हो, A1 इक्वल टू 10, B1 इक्वल टू 20 एंड C1 इक्वल टू 30, ये चलेगा. बट 1A इक्वल टू 10 ये नहीं चलेगा. 2A इक्वल टू 2B इक्वल टू 10 नहीं चलेगा. राइट. पाइथन कीवर्ड नहीं हो सकता, केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, no special characters are allowed during in this, right? And only contain letter, number and underscore. तो ये वेरिएबल को नाम करने के कुछ रूल्स होते हैं. ओके. तो yes, I think from an agenda standpoint, I have covered, this is what I wanted to cover. This was the agenda for today's class. I will write it over here. So agenda for today's class was to introduction to Python, mathematical operators, data types and variables. That is something that we have seen. कल का जो एजेंडा है, कल जो हम पढ़ेंगे, एजेंडा फॉर सेशन 1 एंड एजेंडा फॉर सेशन 2. कल हम पढ़ेंगे बिल्ट इन फंक्शंस, राइट. आई नो आप लोग के कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे, दिस इज द फर्स्ट क्लास, तो पहले क्लास में, एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीवन. कुछ जने हैं जो ऑलरेडी पाइथन सीख कर आए हैं. ठीक है. कुछ जने हैं जिस पहली बार शायद लाइफ में पाइथन पढ़ रहे हो. तो वी शुड, I'm just trying to make this session in a way so that everyone understands. Whosoever is even starting from basics, right? उनको बिल्कुल clear idea हो. अभी हम छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं, इन सबसे मिला करके हमें प्रोग्राम बनाएंगे धीरे धीरे. ठीक है. सो एजेंडा फॉर सेशन 3, और सेशन 3 का जो एजेंडा होगा वो कि हम, what I will do that is I will give you some practice problems, एक मिनी प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा, और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो करेंगे, और इसी को रिवाइज करके समझेंगे. अब आपके डाउट्स क्लियर करेंगे. तो आई वांट टू गिव अ क्विक रिकैप
ठीक है, एक रिकैप देखते हैं, उसके बाद इफ यू हैव आउटस्टैंडिंग क्वेश्चंस आई विल टेक दैट. So we started with what is programming, telling the computers using code, a step-by-step instruction is programming. Evolution of programming 50 से लेकर 2000 तक, 2000 में Python became popular. ठीक है. Now Python क्यों? Because Python is used in a lot of domains for different things, जिसको हम पढ़ेंगे आगे जाके. अब हमने बेसिक स्टार्ट करा टोकन से. टोकन्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम. कीवर्ड्स, स्पेशल वर्ड्स जिनका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है. प्रिंट और सम जो है ना, वो अभी के लिए मैंने आपको कीवर्ड्स बोले, बट प्रिंट और सम एक्चुअल में फंक्शंस हैं. बड़ी एग्जांपल होगा क्लास का लेना फॉर लूप होता है, ये कीवर्ड्स है. बट क्योंकि आपने ये चीज नहीं बोली, नहीं पढ़ी अभी, तो आई टुक द एग्जांपल्स ऑफ सर्टेन फंक्शंस, बट वो फंक्शंस आप ओवरराइड कर सकते हो. क्लास और फॉर जो है हमारे क्या है? कीवर्ड्स. देयर आर मोर कीवर्ड्स व्हिच वी विल सी. वेरिएबल नेम्स, जो कि हम अलग अलग प्रोग्राम के पार्ट्स को नाम दे रहे हैं. लिटरल्स, जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं. मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, वी रेड दैट अबाउट दैट इन डिटेल. सेपरेटर्स, जो भी हमारे पंक्चुएटर्स हो. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्लोट डिवीजन मॉड्यूलस एक्सपोनेंशियल. फ्लोट डिवीजन मेरे को सिर्फ इंटीजर पार्ट देगा, मॉड्यूलस रिमाइंडर देगा, और एक्सपोनेंशियल जो है वो मेरे को पावर रेस करके देगा. ठीक है. अब मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा, एक नंबर इनपुट करना है, और नंबर इनपुट करके उसका स्क्वायर और क्यूब लिखना है. स्क्वायर और क्यूब कंप्यूट कैसे करा हमने? ऐसे कंप्यूट करा. नंबर, नंबर क्या है? नंबर इज 25 और नंबर इज 5, तो द स्क्वायर एंड क्यूब इज 25 and 125, राइट. नाउ डेटा टाइप्स. इसके बेसिस पे हमने पढ़ा कि डेटा टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं. इंटीजर, फ्लोट जब भी मेरे पे न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, फ्लोट तब जब डेसिमल वैल्यूज हैं, और इंटीजर जब मेरे पे सिर्फ इंटीजर्स हैं. स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कुछ भी आता है, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, कुछ भी, राइट. दैट इज अ स्ट्रिंग. इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, दैट इज अ स्ट्रिंग. बुलियन, ट्रू और फॉल्स. स्ट्रिंग की एग्जांपल्स क्या है? अगर मुझे किसी का एड्रेस स्टोर करना है, तो एड्रेस स्टोर करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? यू यूज अ स्ट्रिंग, राइट. किसी की एज स्टोर करनी है तो इंटीजर. किसी की हाइट स्टोर करनी है तो मे बी फ्लोटिंग पॉइंट, राइट. कोई सीनियर सिटीजन है कि नहीं, ये वैल्यू स्टोर करनी है तो बुलियन. ओके. तो आई विल यूज डेटा टाइप्स फॉर डिफरेंट for depending upon what type of data I am storing. उसके बाद हमने देखा कंपैरिजन ऑपरेटर्स. ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड लेसर देन इक्वल टू. दीज आर द डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स. असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमने अरिथमेटिक के अंदर इक्वल टू ऐड कर दिया, तो दे बिकम दी असाइनमेंट ऑपरेटर्स. यहाँ पे ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म्स हैं. लाइक वी सॉ दिस एग्जांपल, a इक्वल टू 5, फिर हमने a में 10 ऐड करा, वापस से a में स्टोर कर दिया, तो a 15 हो गया. a में 2 माइनस करा, a हो गया 13. a में 4 मल्टीप्लाई किया, a बन गया 52. SI वाला एग्जाम्पल दिया, इसमें मैंने बोला कि SI और अमाउंट मेरे को बताना है, बट विदाउट यूजिंग न्यू वेरिएबल्स, राइट. विदाउट यूजिंग न्यू वेरिएबल्स में क्या हो गया? प्लस इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100. इस कॉम्पोनेंट ने मेरे को SI स्टोर किया, और यही मैंने अमाउंट में प्रिंसिपल में ऐड कर दिया. सो दिस बिकम दी अमाउंट. जब हमने कंडीशंस को मिलाया और चेक करा एंड और नॉट से, तो ये हो गए लॉजिकल ऑपरेटर्स. आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, चेक करा हमने कि दो चीज, एक चीज दूसरे के इक्वल है कि नहीं, एक्स वाई के इक्वल है कि नहीं, राइट. देन मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इन, नॉट इन. इन जो है मेरा क्या है? चेक कर रहा है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू इस पर्टिकुलर लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं. मेंबरशिप, इज इट अ मेंबर ऑफ दिस लिस्ट और नॉट. दिस इज मेंबरशिप. एंड देन वी एंडेड अप विद समथिंग रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल. अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, नंबर्स नहीं होने चाहिए. कैनॉट स्टार्ट विद अ नंबर. नंबर्स, अंडरस्कोर और लेटर्स हो सकते हैं. स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है.
केस सेंसिटिव होते हैं, और पाइथन का कीवर्ड वेरिएबल के नाम की तरह यूज नहीं हो सकता. ओके, so these are the basics of programming to start with, right? Okay, guys, let me take your questions now. I know there are some questions, but understand it. Understand the flow. एक expectation setting में आप सबके संग कर दूं. In this course, see, we have around, yeah, a good number of learners. And one important thing that we have to understand here is that, all of you are coming from different backgrounds, right? I prefer to take questions towards the end, जब मैंने concept सारा समझा दिया हो. Because as I said, my next topic can be the answer to your question. Okay? So you are communicating through the chat options, but let's say if you're having some problem, you can tell me towards the end of the session, and I can ask and I can unmute you and you can unmute yourselves at that time. During the flow of the class, we might get diverted to different topic, and then maybe we are not able to cover the agenda, right? So, and the structure is such like this. Structure ऐसा है इस course का कि 3 classes होंगी आपकी Friday, Saturday, Sunday जहाँ हम concepts पढ़ेंगे. Towards the end, I will keep some time for your questions. And then there is a doubt clearing class, जो proper 2 घंटे की class है जिसमें सिर्फ आप doubts बोलेंगे. And in that class, you can unmute yourself, you can speak one by one, your problems, the जो भी issues हो, and I will help you with that. So that is the overall module, right? So first you have to learn the concepts, that is important, practice a bit, and then we are taking care of the doubts. I think the session, the doubt clearing session will be on Wednesdays, where you can come and like unmute and speak, and then that will be your doubt clearing section. Even in these class, I can unmute you and you can speak, but that will happen towards the end of the class, most of the times, right? So yes, I'm okay to take the questions now, right? Related to what we have seen right now, and that is why I told you कि हमारे ये जो topics है ना, built-in functions, कल हम function पढ़ेंगे, flow control पढ़ेंगे, if else if क्या होता है, ये सारी चीजें. फिर हम इसी के अगेंस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम लाइव प्रैक्टिस करेंगे सेशन 3 में. ठीक है, एक मिनी प्रोजेक्ट आपको मैं करके बताऊंगा कंडीशनल लॉजिक पे, और क्वेश्चन आंसर समरी होगी. ठीक है, तो फॉर नाउ आई वांट टू टेक द क्वेश्चंस. ठीक है, तो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे कि मैंने बोला था, दिस शीट विल बी शेयर्ड. So before I end the class, this sheet I will share with all of you, and you will be able to download. One question is not equal to क्या है by दिव्यांश. So दिव्यांश not equal to is I'm saying कि दो चीजें इक्वल नहीं है. जैसे कि मैंने बोला A is 10 और B is 10. अब A और B बराबर हैं, तो अगर मैं लिखूं A equal to B, तो ये तो ट्रू होगा, राइट? बट अगर मैं बोलूं A is not equal to B, मतलब मैं बोल रहा हूं कि A B के बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स होगा. क्यों? क्योंकि A तो B के बराबर है. तो नॉट इक्वल टू इज इफ टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, वी आर चेकिंग दैट. निशांत का क्वेश्चन है A इक्वल टू 5 लिखा एंड A प्लस इक्वल टू 10 लिखा. ठीक है, तो अब A की वैल्यू क्या हो गई? A की वैल्यू हो गई 15, राइट? हाउ कैन आई गेट 5 अगेन फॉर A? Oh, because you have already updated the value of A, Nishant. So the only thing you can do is subtract it by the same number, right? Then you can get that. But if you are like कि मैं दोबारा कुछ वेरिएबल को वाली वैल्यू से रेफर कर लूं, then it's not possible. If you're thinking कि मैं A की वैल्यू बनाऊं, maybe you could have made a copy of A into B, right? And then you would have updated A. That could have been one thing. But in this case, if you want to get the value back, you have to subtract the same value again because you have updated the value. It's an explicit update that you have done. If we write A equal to 5 and A greater than 3 does not showing true or false, what I need to get? Okay, because you are doing one thing wrong. Jeet, A equal to 5, and then you are writing A equal to 5 and
a ग्रेटर देन 3। तो अब जो आप देखेंगे यहाँ तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, और लेट्स से a की वैल्यू 5 है, तो आपका क्वेश्चन ये है कि मेरे को ये ना ट्रू दे रहा है ना फॉल्स दे रहा है, राइट। उसका रीजन ये है क्योंकि a की वैल्यू 5 आपने असाइन करी है। अब यहाँ तो असाइनमेंट हो गया है, इस चीज का रिस्पॉन्स ट्रू या फॉल्स नहीं आता, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि a या तो 5 के बराबर है एंड a 3 से ऊपर है, तो आप ये कर सकते हैं, देन इट विल गिव यू ट्रू। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये सिर्फ वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है। इस चीज का खुद का रिस्पॉन्स कुछ नहीं है, इसने ए में 5 डाल दिया, बट अगर चेक करना है कि ए 5 की इक्वल है कि नहीं, तो आप ए इक्वल टू 5 करेंगे, ठीक है, एंड देन ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन 3 रहेगा। Okay, Atish, I think the recording is going to be available, so you can watch the recording of this class. Okay, that will give you a quick revision of that. I'm taking the questions for now because I think I've done the revision once, and tomorrow also I will start with that. What in software we need practice? We have to download. No need to download the app, Paul. Demalia, just go to Google Colab, open this, and start working. Okay. Divyansh is saying in Python code, doesn't we need to declare the variable and its data type? No. We in Python code, doesn't we need to declare the variable? And no. In Python, you can just take the variable name. Automatically, it infers the name of the variable. By practice, Atish, practice करनी पड़ेगी थोड़ी. It's the first class, right? See, starting में प्रॉब्लम होती है, कोई भी लैंग्वेज पढ़ना शुरू करोगे तो प्रॉब्लम होगी। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझो। अभी हमारे पास आज तो हमने सिर्फ देखा है, जस्ट गो थ्रू देम इन द स्टोरी, राइट। प्रैक्टिस के लिए आई विल गिव यू एग्जांपल्स। पहली क्लास में मैं एग्जांपल और वो नहीं दे रहा, सेकंड क्लास ऑनवर्ड्स कल से मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, सो देन यू विल हैव असेसमेंट एज वेल, ठीक है। बट पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, एंड तीसरी क्लास में आई विल आस्क यू टू राइट अ कोड ड्यूरिंग द प्रोग्राम इटसेल्फ, ड्यूरिंग द सेशन इटसेल्फ, राइट। So we are not overloading you with things. Slowly and slowly you will get that. The default data type of a variable, it depends on the variable, because depending upon variable में क्या value stored है, that will depend the type, right? Ayush is saying, can I use PyCharm? Yes, you can use PyCharm if it's okay with you. When and where we should use bracket, please respond. Bracket, wherever you want to separate your formula very clearly, you should use bracket at that time. Okay, what is flow division? Flow division is, Yogesh, basically आपको डिवाइड करना है 10 3 से 3.33 आएगा, राइट। बट अगर आपको इसका सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डेसिमल पार्ट, तो आप फ्लो डिवीजन कर सकते हैं। आगे जब हम प्रोग्रामिंग में कुछ लॉजिक्स बनाएंगे, कुछ चीजें सॉर्ट करेंगे, तब हमें लगेगा एक हमें ऐसे इंस्टेंसेस यूज होंगे जहां हमें डेसिमल पार्ट से मतलब नहीं होगा, सिर्फ प्रॉपर हमें क्वेश्चन चाहिए होगा, तब हम क्या कहते हैं, फ्लो डिवीजन यूज कर सकते हैं। Please tell the platform that you mentioned just now where we can practice. Platform is Colab. Just here, like if you want to write your code here, I will give you practice problems from next class onwards. जहां पर आप पे questions होंगे, you can go and you can perform those questions. Okay. विवेक, सील के लिए ना डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं होता, मैथमेटिकल एक क्लास होती है इम्पोर्ट मैथ करके, और मैथ में एक फंक्शन होता है सील, मैथ डॉट सील, तो हम वो यूज करेंगे। कल हम देखेंगे इनबिल्ट फंक्शन में विवेक वो। If we use integer and string, which data type we result? If we use integer and string data type, which data type we get a result? Depends upon what you are doing, Robin. Basically, आप पहली चीज, अगर स्ट्रिंग वैल्यू है, लेट्स से आपकी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर्ड है 5, अब आप इस पर डिवीजन कर रहे हो 3 का, तो आपका रिस्पॉन्स ही गलत दे देगा ना, स्ट्रिंग को कैसे डिवाइड कर पाओगे?
डिपेंड करता है ऑपरेटर क्या चला रहे हो यहाँ पे, राइट। अगर आप यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर कह रहे हो तो फिर ये यूज नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, तो दोनों का मैच ही नहीं हो रहा, दोनों न्यूमेरिकल टाइप होने चाहिए, तो ये एरर देगा एक्चुअली। रॉबिन, दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। तो आप इंटीजर यूज करोगे स्ट्रिंग के लिए, तो यू गेट एरर ओवर हियर, इफ दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग विद द ऑपरेटर्स। या फिर आप मुझे एग्जांपल देके बताओ कि आप क्या पूछ रहे थे। हाउ कैन आई यूज पाइथन थ्रू डेटा साइंस, डेटा इसी के लिए हमें आतिश यहाँ पे। अब देखो, अब आपको मैं एकदम से बताने लगूं कि पाइथन डेटा साइंस में कैसे यूज होगी, तो दैट विल नॉट मेक सेंस। पहले आपको पाइथन एज अ लैंग्वेज समझना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट आप इस चीज को अच्छे से समझ पाओ कि पाइथन की बेसिक्स क्या है। क्योंकि डेटा साइंस के लिए अगर आपको ये नहीं पता होगा वेरिएबल क्या है, क्लास क्या है, फंक्शन क्या है, तो आप उस पाइथन को यूज नहीं कर पाओगे ना ढंग से। दैट इज वाई वी आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 2 मंथ्स ऑन पाइथन। आज सिर्फ पहली क्लास है, सिर्फ आपको बेसिक चीजें बताई जा रही हो। देखो, इट्स लाइक दिस। लड़ाई लड़ने जाते हो, या पुराने टाइम में होती थी, तो जितने भी हथियार थे पहले बताया जाता था कि हाँ भाई कैसे यूज करते हैं, क्या है क्या नहीं है, तो अभी आप वो सब सीख रहे हो, बेसिक्स, राइट। क्या क्या वैल्यूज होती हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं, जब ये समझोगे उसके बाद ही तो एक फंक्शन बना पाओगे। मैं कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन से भी शुरू कर सकता था, बट दैट विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प, राइट। स्लोली एंड स्लोली वी गेट देयर, राइट। जस्ट रिवाइज द क्लास, दैट्स इट। जस्ट गो थ्रू इट, अंडरस्टैंड, देखो कौन कौन से तरीके, एक तो ये इंपॉर्टेंट है वेरिएबल नेम्स, एक ये याद करो क्या क्या रूल होते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लिखो असाइनमेंट वाले ऑपरेटर्स के, सिंपल इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला बनाया वो बनाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बना के लाना कल, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो डू दैट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, ठीक है। एक दो चीजें ट्राई करो एंड देन यू विल बी एबल टू गेट द होल्ड ऑफ दैट। Can Boolean data type be used in mathematical expression? Like we can't use strings and expressions. Boolean is a true or a false thing, right? Depends on what operation you are doing. Depends on the formula. तो किसी भी फॉर्मूला के संग अगर आप ट्रू के संग एक आप बूलियन ऑपरेटर यूज कर रहे हो मैथमेटिकल फॉर्मूला के संग, फॉर एग्जांपल लेट्स से ए नॉट इक्वल, लेट्स से 5 नॉट इक्वल टू 5 इक्वल टू 5, राइट, एंड 2/3। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे 5 = 5 को 1 कर दिया, इसका रिजल्ट 1 होगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, ट्रू। इन वे हम लिख रहे हैं ट्रू एंड 2/3 0.66। तो ट्रू एंड 0.66 तो नल एंड वॉइड हो गया ना, ये तो कुछ है ही नहीं, तो मेरे पे सिर्फ यही बचा ना, तभी मेरे पे 0.66 आ गया। सी यू कैन यूज एनी कॉम्बिनेशन, दैट इज ओके, बट द थिंग इज द टास्क इज कि आपको करना क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो दीज आर द कंपोनेंट्स दैट यू आर लर्निंग। अब आगे जाके आपको प्रॉब्लम बताई जाएगी, जैसे कल के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मेरी, मुझे बताना है कि एक नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। एक नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो प्राइम नंबर बनाने का लॉजिक क्या होगा, दैट इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ओके, good, nice, nice, nice. I know everyone is ambitious to learn Python, but we will continue this journey tomorrow onwards. अभी के लिए आई एम क्लोजिंग द सेशन बिकॉज आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज। कल बात करते हैं बाकी सारे चीजों के संग, बट बिफोर आई क्लोज द सेशन, दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर, एंड आई थिंक साइन यू आर हियर, यू कैन डाउनलोड दिस एज वेल, आई विल शेयर दिस विद यू, एंड कैन यू क्विकली चेक इफ यू आर एबल टू डाउनलोड इट। ठीक है, जो भी मैंने सेशन में पढ़ाया बोला वो सब कुछ इस नोटबुक में है, आप जाकर के नोटबुक डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मेरी स्क्रीन देखिए, यहाँ पर आप जाएंगे फाइल में जाके डाउनलोड करेंगे और IPYNB नोटबुक की तरह डाउनलोड कर लेंगे, तो ये आपकी आई पाइथन नोटबुक डाउनलोड हो जाएगी आपके लैपटॉप को। और आपको इसको खोलने के लिए गूगल कोलैब में जाना है, या तो आप गूगल कोलैब में से खोल सकते हैं,
कोलैब खोलेंगे, इसमें अपलोड नोटबुक करेंगे और अपलोड में ब्राउज करके आप अपनी लोकेशन बता देंगे, ठीक है। या फिर आप इसको अपने जुपिटर नोटबुक में भी खोल सकते हैं, वट एवर इज इजियर फॉर यू। For today's session, we completed introduction to Python, mathematical operators, data types, and variables. Okay. Tomorrow you will continue with built-in functions, flow control, and from tomorrow onwards you will get some assignments and things to do, and that is where you can evaluate your skills. Okay. So I'm closing the session today. I'm going to see you tomorrow. Okay. कल बात करते हैं, and we'll continue with this journey. I hope you all enjoyed the class. Thank you so much. Take care and see you tomorrow. Bye. And please do fill the feedback towards that you will get after the session, right? Please do take some time to fill the feedback, right? Thank you. Take care.